Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो आज हम देख रहे हैं भागवतम के थर्ड कैंटो 29 चैप्टर श्लोका नंबर 16। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज आविर्भाव तिथि है जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज और रसिकानंद आचार्य जो हमारे, तो सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम और आशीर्वाद देते हुए शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का श्लोका है मद्दिष्ण्या दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद्भावनाय सत्वे नासन सत्वे नासंगम में च। तो इसका तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। Translation: The devotee should regularly see my statues in the temple, touch my lotus feet, and offer worshipable paraphernalia and prayers. He should see in the spirit of renunciation from the mode of goodness and see every living entity as spiritual. इस तात्पर्य का हम लोग आज केवल फर्स्ट दो पैराग्राफ ये करेंगे, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और कल जो है रिमेनिंग टू जो और एक भक्त है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मत माई विष्ण्यास स्टैच्यू दर्शन सीइंग स्पर्श टचिंग पूजा वर्शिपिंग स्तुति प्रेइंग टू अभिवंदने बाय ऑफरिंग obeisances भूतेषु इन ऑल लिविंग एंटिटीज मत ऑफ मी भावनाय विथ थॉट सत्वेन by the mode of goodness asanga mena with detachment and so temple worship is one of the duties of a devotee. Okay, temple worship is one of the duties of a devotee. It is specially recommended for neophytes, but those who are advanced should not refrain from temple worship. There is a distinction in the manner a neophyte and an advanced devotee appreciates the Lord's presence in the temple. A neophyte considers the Archa Vigra, the statue of the Lord, to be different from the original personality of Godhead. He considers it a representation of the original personality of Godhead. He considers it a representation of the Supreme Lord in the form of a deity. But an advanced devotee accepts the deity in the temple as the Supreme Personality of Godhead. He does not see any difference between the original form of the Lord and the statue or archer form of the Lord in the temple. This is the vision of a devotee whose devotional service is in the highest state of bhava or love of Godhead, whereas the neophyte worship in the temple is a matter of routine. Temple deity worship is one of the function of a devotee.
He goes regularly to see the deity nicely decorated with veneration and respect. And respect, he touches the lotus feet of the Lord and presents offering of worship such as fruits, flowers, and prayers. At the same time, to advance in devotional service, a devotee should see other living entities as spiritual parts and parcel of the Supreme Lord. The devotee is to offer respect to every entity that has relationship with the Lord, because even because every living entity originally has a relationship with the Lord as part and parcel. Devotee should try to see all living entities on the same equal level of spiritual existence. As stated in Bhagavad Gita, a Pandita, one who is learned, sees equally a very learned Brahmana, a Shudra, a hog, a dog, and a cow. Does not see the body, which is only an outward dress. He does not see the dress of a Brahmana or that of a cow or a hog. He sees the spiritual parcel of Supreme Lord. But it does not see every living entity as part and parcel of the Supreme Lord. He is considered Prakrita Bhakta, a materialistic devotee. He is not completely situated on the spiritual platform, rather he is in the lowest stage of devotion. He does, however, show all respects to the deity. Samkaroti Vachalam Pangum Langete Girim Yatridvadamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Parmananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो जैसे हम जानते हैं कि दो मार्ग है, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिका विधि। तो भागवत विधि में ये नॉर्मली अभी जो हम लोग कलयुग में हमको जो दिया गया है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जो नाम जप है, वही इस कलयुग का जो युग धर्म है। और पंचरात्रिका विधि यानी डीएटी वर्शिप, जो हम जो हम फॉलो जो करते हैं, नारद पंचरात्रिका। और जो हम रोज सुबह जो मंगल आरती में जो मंगल आरती गाते हैं गुरु अष्टकम, तो उसमें भी ये आता है ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादान् स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। तो इसमें जो गुरु है, इस हमको क्या करते हैं, श्री विग्रहार, जो अर्च विग्रह है श्री विग्रहार, तो उसका किस तरह से सेवा करना है और हमको किस तरह से उसमें वो युक्त करते हैं, तो इसका वर्णन होता है। और आगे मतलब जो 4 प्रकार के जो खाने के जो मतलब भोग है, जो उसको भी किस तरह से हमको भगवान को अर्पण करना है, ये पूरा इसका वर्णन आता है इस गुरु अष्टकम में। और फिर श्री राधिका माधव जो सुंदर अर्च विग्रह है भगवान के, जैसे श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा श्याम सुंदर, अलग अलग राधा रास बिहारी, श्री राधा रास बिहारी, ये अलग अलग जो अर्च विग्रह है उनका दर्शन हमको किस तरह से गुरु सिखाते हैं, ये सारा गुरु अष्टकम में आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि द्वापर युग में जो था वो टेम्पल वर्शिप वॉज द युग धर्म। हमको जैसे पता है ना, 4 युग के अलग अलग युग धर्म थे। तो हम ये सोच सकते हैं कि अभी कलयुग में तो कली केवल नाम आधार, राइट। तो एक कनकदास बोल के एक सुंदर बहुत ही प्रख्यात भक्त है कर्नाटका के, तो वो भी एक भजन में कहते हैं, कन्नड़ में है वो कि नी याको निन हंग याको निन नामद बल विद्यर साको। तो वो मतलब भगवान से क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी क्या जरूरत है, और मतलब नी आप मतलब, और आपका ये जो ये हंग यानी ये कहते ना फेवर, तो हम कहते हैं ना, मुझे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मैं किसी के फेवर में नहीं, मतलब आई डोंट टेक एनी फेवर। तो उसी तरह से वो कह रहे मुझे आपकी जरूरत भी नहीं, आपका कोई फेवर नहीं चाहिए, आपका नाम का जो शक्ति है वो मेरे साथ है, तो केवल मुझे काफी, मैं मतलब अपना जीवन
हरे कृष्णा। तो आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, सिप्रिया। तो वो मतलब उनका कहने का यही ये है कि मुझे मतलब वो ऐसा नहीं कि भगवान को चैलेंज करे या नहीं, मतलब एक हर एक भक्त का एक अलग रसा होता है, तो जस्ट टू मतलब दिखाने के लिए कि भगवान का नाम कितना मतलब शक्तिशाली है, तो बोलते भगवान मुझे आपकी भी जरूरत नहीं, आपको कोई आपका ऐसा नहीं चाहिए, आपका नाम जो है ना उसका मैं आश्रय लेके कर सकता हूँ। तो इतना मतलब कलयुग में नाम का महिमा है। तो फिर हम लोग ये पंचरात्रि का या अर्च विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप के ऊपर इतना जोर प्रभुपाद ने क्यों दिया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है कि हम लोगों का जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रियां है, अभी भी पूरी तरह से भगवान के नाम में लीन नहीं या उसमें मग्न नहीं होते। हमें हमें पता है जब हम नाम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां ऐसे नहीं कि पूरी तरह से उस हरे कृष्ण महामंत्र में मग्न हो जाती है। हमको कभी कभी नींद आता है या मन जो है इधर उधर भागता है, पूरे दिन का क्या क्या कार्य करना है उसके ऊपर सोचता है। हमारे आंखें इधर उधर मतलब कभी कभी हम जब करते करते साइड सीइंग मतलब पूरा इधर मतलब अगर ब्रह्म मुहूर्त का भी समय है, हम जानते हैं कि सबसे अच्छा समय है मन शांत, लेकिन क्योंकि कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त भी सबसे अच्छा मुहूर्त है और सबसे कन्वीनियंट टाइम है, वो टाइम में भी जो मतलब मन इधर उधर भागता है, आंखें भी इधर उधर देखती है, राइट? तो इवन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड सो मच। तो इसकी वजह से ये जो अर्च विग्रह का जो सेवा है, जब हम फिजिकली जब हम अपने क्या कहते हैं हाथों से अपने अ, जब कुछ फिजिकली जब किसी चीज में जब हम कार्य होते हैं, तब एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन अपना ज्यादा जो है बढ़ जाता है। तो इसके कारण जो है प्रभुपाद ने ये हमको दोनों विधि दी, भगवत विधि भी दी और पंचरात्रि का विधि दी। इसके वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन दो कलयुगा में केवल नाम जप बताया गया है, लेकिन हम जैसे साधक को जो अभी भी पूरी तरह से इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम ना होने के कारण अभी भी हमारा जप जो हरि नाम जप अभी भी शुद्ध स्तर पे न करने के कारण क्या होता है कि डीटी वर्शिप में जब हम एंगेज होते हैं, तब क्या होता है धीरे धीरे भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण बढ़ता है। इवन जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, धीरे धीरे हमारे जो भी अंदर के अवगुण है या जो अनर्थ है वो भी साफ होने लगते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो मंदिर में जो अर्च विग्रह है वो साक्षात भगवान ही है, राइट? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि राधा गोपीनाथ जी जो जयपुर में है, तो जब उसको जयपुर में लेके गए थे, ये जब मुगलों का जब शासन में जब सारे मंदिर तोड़ रहे थे वो लोग वृंदावन में, तो हम जानते हैं कि हमारे जो तीन मुख्य संबंध अभिधेय और प्रयोजन के जो अर्च विग्रह है, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव जी और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, तो इनको हम लोग जयपुर उनको लेके गए थे जो एक्चुअल डीटीज है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये तीनों डीटीज का अगर हम एक दिन में मतलब सुबह से सूर्य अस्त के पहले, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के पहले अगर हम तीनों डेटिस के उस एक दिन में अगर हम दर्शन लेते हैं, तो ऐसे जो भक्त है उसी इसी जन्म में जो है भगवत धाम जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि राधा मदन मोहन जी के जो चरण कमल है, जो वृंदावन जो हमारे साक्षात भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो गोलोक वृंदावन में है, तो राधा मदन मोहन जी के जो चरण कमल है वो सेम टू सेम है। और फिर उनका जो फिर जो उनका जो बीच का भाग जो चेस्ट वगैरह, तो वो जो राधा गोविंद देव जी का जो है वो सेम टू सेम। और राधा गोपीनाथ जी का जो चरण कमल मुख है
वही जो है हमारे कृष्ण भगवान जो वृंदावन में है, तो सेम टू सेम ऐसा आचार्य ने इसके ऊपर कहा गया है। सो व्हेन यू, जब आप राधा गोपीनाथ जी का जब दर्शन लेते हैं जो जयपुर में जो है, तो उनका जो कमल मुख है वही जो है साक्षात जो कृष्ण गोलोक वृंदावन में वही सेम टू सेम। तो अ, तो इस तरह से तो ये जो राधा गोपीनाथ जी को जब इंस्टॉल किया गया था, तो एक अंग्रेज वहां पे आए थे, एक अंग्रेज। तभी हम जैसे जानते हैं कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने भी शासन किया था, तो उन्होंने वहां जो पुजारी थे, वैष्णव जो पुजारी जो राधा गोपीनाथ जी का सेवा कर रहे थे, तो वो उनको कहने लगे कि आप भारतीय मतलब पूरी तरह से मूर्ख हो, आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, ये तो केवल पत्थर है, आप रोज इसको इतना अच्छा श्रृंगार करना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, मतलब ये मतलब बच्चों जैसी हरकत है आप लोगों की, ये तो एक केवल एक मूर्ति है। तब पुजारी ने कहा नहीं, ये आपकी गलत सोच है, ये साक्षात भगवान है। तो उसने बोला तो उसने कहा क्या इसमें प्राण है? तो बोला हाँ ऑफ कोर्स। जैसे हम जानते हैं ना, हम जब भी भगवान अर्थ जब नया मंदिर बनता है और अर्थ विग्रहों का स्थापना होता है, तो प्राण प्रतिष्ठा बोल के जो हम करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, फिर मेरे पास एक घड़ी है, और एक घड़ी जो है वो जो पल्स होता है ना हमारे हाथों में, तो उसके ऊपर चलती है। तो अगर सही में अगर इस मूर्ति में प्राण है, या आप कह रहे हैं भगवान है और एक जीवित है, तो चलो एक घड़ी उसको हम लोग जो है लगाते हैं और देखते हैं, क्योंकि इट विल वर्क ओनली ऑन पल्स, उसके ऊपर बैटरी वगैरह नहीं। तो अगर सही में प्राण है तो वो घड़ी चलनी चाहिए ना। और जैसे ही उस अंग्रेज ने वो घड़ी पुजारी को दी, और पुजारी ने भगवान के हाथ कलाई में बांधी वो घड़ी, और ही वाज शॉक, वो जो घड़ी है वो चलने लगी। और तब मतलब वो इतना उसको ये हुआ। और अभी भी अगर आप देखेंगे राधा गोपीनाथ जी के आप फोटो भी देखेंगे, अभी भी वो घड़ी है, मतलब उनको घड़ी पहनाई जाती है। तो और वो ही वाज शॉक, उसको लगा था कि वो इन लोगों को बेवकूफ बना के या फिर उन लोगों को हराएगा, एंड उससे वो भी सरेंडर हो गया। एंड ही अंडरस्टूड कि ये जो हमारे हर जो प्राचीन जितने भी प्राचीन मंदिर है, या फिर जितने भी मंदिर जहाँ पे शुद्ध भक्त के द्वारा ये अर्च विग्रह स्थापित होते हैं, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो ये एक बहुत सुंदर ये जो कथा है, इससे हमको पता चलता है, और ये अभी अभी की बात है, राइट? ऐसे नहीं कि कहीं तो पता नहीं। तो इट इज मतलब एकदम प्रमाण है ये कि ये जो सारे हमारे अर्च विग्रह है, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे भक्त होते हैं, वो भगवान के सामने जाके कितने प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, एंड दे फील वो उनको आदान प्रदान का महसूस होता है। जैसे कि और एक ये बहुत मतलब प्रचलित हुआ था एक, तो एक लड़की थी, ये ऊपर से वेस्टर्न वेस्टर्न इसमें हुआ था। तो वो नरसिंह देव का बहुत मतलब छोटी सी लड़की है, और हम जानते हैं कि बच्चों को ये जो नरसिंह आरती है सबसे पहले वो सीखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है वो ट्यून और वो पूरा। और हम भी कभी कभी मंदिर में जब मंगल आरती वगैरह रहता है, तो नरसिंह आरती कभी कभी बच्चों को कहते हैं गाने के लिए। तो वो हमेशा उसके पास एक छोटा सा वो नरसिम्हा डॉल था, तो उससे हमेशा खेलना कूदना, और पूरी तरह से वो नरसिम्हा देव के मतलब। और एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते पे वो क्रॉस कर रहे थे, और एक गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट उसको टकरा के चली गई, और हम ऐसा लगा कि अभी मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। पर अब देखा तो मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ था, खरोच भी नहीं आया थी। और उसकी माँ वगैरह, माँ पिताजी जब देखते हैं, और फिर वो लड़की कहती है कि मुझे जब वो गाड़ी टकराई, तो नरसिम्हा देव ने आके मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि सही में ये जो भगवान जो हम कहते हैं ना सर्वव्यापी, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी भी कहीं पे भी, तो भले ही हम भौतिक जगत में है, लेकिन अगर हमारी भक्ति शुद्ध है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का रक्षा करने के लिए कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है। जैसे कि मैंने परसों एक ग्रुप पे भी शेयर किया था,
जैसे कि एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से भगवान रामचंद्र के ऊपर आश्रित था। अ, जो भी होता वो केवल भगवान मतलब भगवान के ऊपर आश्रित था। और शायद आप लोग ने सुना होगा, लेकिन जस्ट अगर किसी ने सुना नहीं है तो उनके लिए जस्ट संक्षेप में, तो अपनी बेटी की शादी के लिए एक सेठ से कुछ पैसे ये लेता है, कर्जा लेता है, और फिर वो कर्जा चुका भी देता है। लेकिन जब वो सेठ जी सोचता है कि अरे ये तो मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और वो जो लिख के देता है कि आपने पूरा कर्जा चुकाया है, वो उस चिट्ठी को उतना गंभीरता से वो नहीं लेता। तो सेठ जी को लगता है कि चलो और एक बार इससे पैसा ले लेते हैं, और वो चिट्ठी उसको नहीं देता, और वो केवल ऐसे कुछ ऐसा लिख के दे देता है। मतलब वो पहले उसमें लिखा रहता है कि आपने पूरा कर्जा चुका लिया, लेकिन जब वो देखता है कि ये जो उसका नाम भोला, वो भोला उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको लगता है कि ये तो मूर्ख आदमी है, तो इससे और एक बार क्यों ना ले। तो वो जो जिसपे लिखा था कि सब कर्जा माफ किया है, वो वाला चिट्ठी वापस लेके उसको और कोई चिट्ठी दे देता है। और फिर सेठ जी जो है उसको उसके ऊपर केस कर देता है कि इसने अभी तक पैसा नहीं चुकाया। और जब जज उसको पूछता है भोला को कि जब तुमने सेठ जी को सारा कर्जे का पैसा दिया था, तो इसके तुम और सेठ जी के साथ कोई साक्षी था क्या जो साक्षी दे सकता है कि तुमने पैसे दिया है? तो वो बहुत ही मतलब वो भक्त भक्त कैसे रहते हैं, बहुत सरल रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ, जब मैंने सेठ जी को मैं जब पैसे दे रहा था, तो मेरे साथ मेरे रघुनाथ जी, मतलब वो भगवान, वो रघुनाथ जी का मंदिर था ना, राम जी को रघुनाथ से भी, तो मेरे और मेरे सेठ के अलावा रघुनाथ जी साक्षी है। तो जज को समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि रघुनाथ मतलब कोई एक व्यक्ति रहेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम जाओ। और वो जज जो है स्वयं वो समन्स भेजता है, मतलब वो साक्षी देने के लिए आओ बोल के। और वो जिसके हाथ में भेजा जाता है वो पूरे गांव में ढूंढता है और देखते हैं कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है ही नहीं। और फाइनली कोई बोलता है यहाँ पे एक रघुनाथ नाम का एक मंदिर है। तो बोलता है अच्छा वही बताओ। और फिर वो वहां पे जाता है, और पंडित जी को समझ में आता है, क्योंकि भोला वही मंदिर में रहता था। और वो मतलब वो पुजारी को लगता है कि अभी भगवान ने खुद मंगवा लिया है समन, तो ले लेता हूँ। और वो पूजा करता है, अ, प्रार्थना करता है कि भगवान देखो अभी ये तो आपका इतना शुद्ध भक्त है और सेठ जी इसको फंसा रहा है, और इसको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप साक्षी दीजिए। और फिर हम जानते हैं कि जब सुनवाई होती है तो स्वयं भगवान जो है अदालत में जाके साक्षी देते हैं। और फिर जज सोचता कि ऐसे व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, तो वो ये रघुनाथ है कौन बोल के वो उस गांव में जाता है वापस मिलने के लिए। और तब पता चलता है कि ये रघुनाथ जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। और तब जो जज है पूरा क्या कहते हैं अपना काम छोड़ता है, मतलब इस्तीफा देके वृंदावन में जाके बस जाते हैं। और तब से वो कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ भगवान ने, कि भगवान जो है आके मुझे साक्षी दे रहे थे और मैं इतना जज बन के उनको पूछ रहा था, तो इतना बड़ा मुझसे अपराध हुआ है भगवान के प्रति। तो इसलिए वो हमेशा जो है कभी भी किसी मंदिर में अंदर नहीं जाते, केवल बाहर रुक के भगवान को प्रणाम करते। तो ऐसे अलग अलग कहानियां हैं जो दिखाते हैं कि भगवान जो है साक्षात जो है इस मतलब ये कोई अर्च विग्रह कोई ऐसे ही मन गढ़ बनाई गई, मतलब एक क्या कहते हैं अंधविश्वास का आस्था नहीं है। ये शास्त्रों के आधार पे बनाया गया, मतलब एक हम जैसे बद्ध जीव को भगवान से आदान प्रदान करने के लिए भगवान इतने करुणामयी है कि वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। और जब हम भगवान से सही में जब प्रार्थना करते हैं, तब जो है भगवान उस आदान प्रदान को प्रदान का मतलब हमसे आदान प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे वही कपिल मुनि कह रहे हैं कि हमेशा जो है हमको मंदिर जाके भगवान के अर्थ विग्रहों का दर्शन लेना चाहिए। हमेशा भगवान के चरण कमलों को आराधना करना चाहिए। और मतलब फूल, फ्लावर्स, फिर फल
और जो हम लोग रोज भोग लगाते हैं वो भोग लगाना है, और रोज भगवान को प्रार्थना जो है अर्पण करना चाहिए। ओके, और फिर ये सब कैसे होना चाहिए? इन द स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन, और सत्व गुण में, और बिना कोई आसक्ति, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर जीव को जो है हमको मतलब उनके अंदर वो परमात्मा स्वरूप, मतलब ये भी भगवान के अंश है, वो हमको देखना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना, मात्रवत प्रदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवान सर्वभूतेषु, आत्मवान सर्वभूतेषु। जैसे हमको अपनी कितनी फिक्र होती है, राइट? हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना हो, हम चाहते हैं हमको कोई धोखा ना दे, हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे तोल मतलब कोई मुझे चीट ना करे। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो, आप हमेशा सोचते हैं भगवान प्लीज मुझे ये जो मैं जहां से खरीद रहा हूँ वो व्यापारी अच्छा हो, हम कुछ चीज खरीद रहे। तो जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना हो, कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, तो इसी तरह से हमको हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का ही एक अंश है, तो हम यू शुड बी वेरी केयरफुल। आत्मवान सर्वभूतेषु, तो जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, कुछ भी, तो जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, उसी तरह से हमको ये भी देखना है कि हम भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हर जो है, हर एक व्यक्ति जो है भगवान का अंश है, और हर व्यक्ति में जो भगवान परमात्मा रूप स्थित है। तो बहुत टाइम हमको लगता है कि हम लोग जो है जजमेंटल, हम लोग जज बहुत ज्यादा करते हैं लोगों को, राइट? तो जब हम लोगों को जज करते हैं, एक्चुअली हम लोग भगवान के जो बनाए गए, जो हम सब लोग, ये ऑल क्रिएटेड बाय लॉर्ड ना, हमको भगवान ने बनाया हुआ है। तो एक्चुअली हम उस व्यक्ति को जज नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली भगवान को जज कर रहे हैं। हमेशा हमको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ जो व्यक्ति जिस तरह से बर्ताव करता है, या जो जिस तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करता है, एक्चुअली हमको सोचना चाहिए कि भगवान इस व्यक्ति के द्वारा हमसे, हमको या तो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, या हमको टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या मेरी शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद भी कहते हैं, अगर कोई मेरे साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहा है, और मैं उसमें मैं चिढ़ रहा हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, सो इट इज नॉट, वो जो सामने जो व्यक्ति, उसका कोई उसमें दोष नहीं है, दोष मेरे कृष्ण भावनामृत का अभाव का दोष है। आई एम स्टिल नॉट प्रॉपरली कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए मुझे जो मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर जो है खामियां दिख रही है। तो ये ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो जैसे हमको रोज, तो हमारा जो सुबह जो अगर हर कोई मंदिर के समीप नहीं रहता है, तो प्रभुपाद की कृपा से हर किसी का जो प्रभुपाद के आश्रय में है, हर किसी का जो घर है वो एक मंदिर के समान ही है। क्योंकि 100% हर किसी के घर में एक सुंदर ऑल्टर है, जहाँ पे अलग अलग, किसी के घर पे राधा गोपीनाथ जी है, किसी के घर में राधा माधव है, किसी के घर में राधा रास बिहारी है, फिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन, फिर नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज, फिर पंच तत्व, और फिर हमारे पूरे गुरु परंपरा। तो ऐसा जो ऑल्टर है वो मंदिर ही है। ऐसा मत सोचिए कि ये फोटो है। वो जो राधा माधव या राधा गोपीनाथ या जो राधा रास बिहारी का जो आपने फोटो लगाया है, वो भी जो मंदिर के राधा गोपीनाथ या माधव उनसे अभिन्न है। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि वो जो अर्च विग्रह है वो भगवान साक्षात है, और यहाँ पे तो केवल फोटो नहीं, वो भी जो है सेम है। तो प्रभुपाद की कृपा से हर किसी का घर है जो मंदिर है। तो सुबह उठते ही अच्छी तरह से स्नान करके, हाँ, अपना जपा करके, जब हम भगवान के ऑल्टर के सामने जाते हैं, तो सुंदर तरीके से उनका जो है हमको दर्शन लेना है। फिर हमारे प्रेयर्स, तो कभी कभी हमको लगता है कि क्या प्रार्थना करना है हमको। तो अगर हम देखेंगे, हमारे जो गुरु अष्टकम है, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, गुरु गुरु आरती, ये सारा जो है एक्चुअली दे आर प्रेयर्स ओनली। मतलब हमको और अपना, मतलब आपके हृदय से अगर आपको कुछ बात करना है वो अलग है, लेकिन अगर आप सोच रहे कि मैं क्या प्रेयर करूं, तो ये जो हम भजन गाते हैं,
तो ये भी प्रेयर्स ही है, दे आर नॉट आइटम, तो ये भी प्रेयर्स ही है, राइट। तो आपको कोई और इन्वेंट करने का जरूरत नहीं। उसके अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन हमारे आचार्यों ने, शिला नरोत्तम दास ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, इतने सुंदर, शिला लोचन दास ठाकुर, इतने सुंदर भजन गाए हैं। अगर आप उस भजन को भाव से गा के उसका अर्थ अगर समझेंगे तो वो भी पूरे प्रार्थनाएं है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद में भगवान को सुंदर तरीके से, जो भी आपके, चाहे तो आप खरीद के ला सकते हैं फूल को, या फिर आपके अगर आंगन में है या फिर आपके बगीचे में, तो सुंदर सुंदर पुष्प जो है वो भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। और जब आप ये सारा करते हैं तो आप देखिए कि आपका जो पूरा जो मन, आपकी जो बुद्धि, आपकी जो इंद्रियां, जब आप सही में जब भगवान के ये सेवा करते हैं ना, वो टाइम जो है पूरी तरह से हमारा जो कंसंट्रेशन या जो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। इसके वजह से ये जो अर्च विग्रह का सेवा, बहुत इसको महत्व दिया गया है। आप चैंटिंग करते वक्त आप इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका मन इधर उधर भागेगा। लेकिन जब आप पुष्प रख रहे हैं भगवान को, या तुलसी अर्पण कर रहे हैं, भोगा लगा रहे हैं, या आपका ऑल्टर साफ कर रहे हैं, या पानी चेंज कर रहे हैं, आप देखिए मतलब आपको मतलब और स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एकदम अच्छी तरह से या पूरी तरह से भगवान के सेवा करने में आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि अभी फिजिकली जो है आप ये सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो इसके वजह से जो है हमको ये अर्च विग्रह का सेवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब आप परफेक्ट होंगे धीरे धीरे धीरे, फिर देखिए आपका जपा भी जो है, आप जब जप करेंगे तब आपका मन इधर उधर भागना कम हो जाएगा, आपका नियंत्रण बहुत ये होगा। तो एक्चुअली प्रभुपाद इज अ जीनियस। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा कि कलयुग में केवल नाम आधार है, ये डीटी वर्शिप सब होने वाला नहीं, नहीं। प्रभुपाद मेड श्योर, और प्रभुपाद ने इतने सुंदर मंदिर बनाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत मतलब बहुत हर मंदिर सुंदर है, लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद ने अर्च विग्रह डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड ऐसे लेवल पे रखा है कि कोई जो भक्त भी नहीं है वो जब आके दर्शन लेता है और वो हमारा जो श्रृंगार वगैरह, तो वो इतना मोहित होता है, इतना मोहित होता है कि भगवान मतलब ऐसे लोग भी जो है देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर हमारा रोज, और ये देखिए मतलब प्रभुपाद ने ऐसा स्टैंडर्ड का एवरी सिंगल डे। आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, हर दिन मंगल आरती, फिर दर्शन आरती, आप जब उस दर्शन लेते हैं, रोज भगवान के जो ड्रेस और रोज जो श्रृंगार इतना सुंदर है, आप सोच भी नहीं सकते। तो और जो भक्त वहां पे जो ब्रह्मचारी वगैरह कर रहे हैं, मतलब कितना उनका हमको आभार मानना चाहिए। क्योंकि रोज अगर आप देखेंगे इसको, मतलब मायापुर हो, वृंदावन हो, कोई भी, हर दिन हमको इतना सुंदर दर्शन देखने मिलता है। हाँ, घर पे शायद वो पॉसिबल नहीं है। घर पे बहुत सारे लोग एकादशी टू एकादशी, अगर उनके घर में अर्च विग्रह है, एकादशी टू एकादशी ड्रेस चेंज करते रहेंगे। लेकिन पुष्प वगैरह तो रोज डालना निकालना वो रहता ही है। तो ऐसा कर करके क्या होता है, हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा भी है वो बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोगों के भी मतलब अपने अपने पर्सनल डेटी के साथ भी कितने सारे ऐसे कहानियां होंगे जहाँ पे उनको ऐसा आदान प्रदान भगवान ने किया है, जहाँ पे उन्होंने बातचीत मतलब बात किया है और उसका उनको एक साइन भी है ऐसा। तो ऐसे करते करते हमारा क्या होता है, भक्ति में हम प्रगति करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे और एक चीज है कि केवल भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों को और अन्य जीवों को भी भगवान के इन कनेक्शन टू लॉर्ड वी हैव टू सी। तो जब हम हर एक जीव को भगवान के संबंध में जब हम देखेंगे, तो हम लोगों का उनके प्रति जो है अपना जो आचरण या फिर हमारा व्यवहार वो बदल जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल भक्त को हम देखेंगे या वरिष्ठ भक्त को देखेंगे या सन्यासी को देखेंगे या गुरु को देखेंगे और हम उनको ही केवल सम्मान या फिर उनको दंडवत, नहीं। हमको जितना हो सके हर एक जीव को उसी तरह से हमको हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हर एक और भगवान जो है हर एक जीव से प्रेम करते हैं। बहुत सारे जीव हो सकता है कि इस जन्म में शायद भक्त नहीं बनने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनको नकार रहे हैं। हो सकता है उनका टाइम अगले जन्म में आने वाला हो। तो हमेशा याद रखें कि भगवान
हर किसी से प्रेम करते हैं, इसकी वजह से वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित है, राइट। अगर उनको प्रेम नहीं होता तो वो सोचते हाँ जो भक्त बनेगा मैं केवल उसके ही हृदय में रहूंगा, ओके, ऐसा सोच सकते थे, राइट। लेकिन भगवान क्योंकि सबके पिता है, भगवान हर किसी से प्रेम करते हैं। और भक्त बनने का मतलब यही है, मतलब भक्त जो है वो ये जानता है कि भगवान हर किसी के हृदय में है और हर किसी से प्रेम करता है। तो मैं अगर इसका अपमान करूंगा, इससे व्यवहार नहीं सही करूंगा, तो भगवान को जो है अच्छा नहीं लगेगा। ये हमको सोचना चाहिए, राइट। क्योंकि भगवान अगर हर किसी से प्रेम करते हैं, जैसे कि मानो मैं एक पिता हूं और मेरा एक लड़का है, तो अगर कोई मेरे लड़के से अगर अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करेगा, उसको डांटेगा या मारेगा या कुछ, तो मुझे उस व्यक्ति के प्रति एक ये होगा ना, क्योंकि ये क्यों मेरे लड़के को इस तरह, जैसे कभी होते हैं ना माँ बाप स्कूल में जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे को क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप मेरे बच्चे को हमेशा क्यों डांटते हो, हमेशा मेरे बच्चे को आप पनिशमेंट क्यों देते हो। तो फिर टीचर समझाती है कि नहीं नहीं, आपका बच्चा जो है अगर मैं उसको डांटूंगी नहीं, पनिश नहीं करूंगी तो वो बिगड़ जाएगा। हाँ ऐसा है क्या, हाँ फिर ठीक है। लेकिन अगर वो माता पिता को लगता है कि जानबूझ के ये मेरे बच्चे को मतलब परेशान कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है, राइट। कभी कभी बोलते हैं ना अपने बच्चों को, हम लोग कभी कभी किसी के घर या किसी के साथ नहीं भेजते क्योंकि हमको पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो उसी तरह से जो भगवान है वो हर एक जीव को इतना प्रेम करता है, क्योंकि वो उनके बच्चे, उनका पुत्र होने के कारण, पुत्री होने के कारण। तो अगर जब हम ऐसे हर एक जीव से सही से व्यवहार करेंगे, तब भगवान जो है और प्रसन्न होंगे। तो इसकी वजह से हमको हमेशा क्योंकि बहुत टाइम हम लोग को लगता है हम हमेशा ये भक्त है ये अभक्त है, ये सही है ये सही नहीं, ऐसा बहुत हम लोग जजमेंटल होते हैं। हाँ अगर हमको लगता है कि कोई व्यक्ति सही नहीं है और उसके साथ हम लोग ज्यादा व्यवहार नहीं कर सकते या आदान प्रदान, तो ऐसे लोगों के साथ दूर रहिए, लेकिन गलत व्यवहार नहीं करना है। एक होता है दूर रहना और एक होता है कि जानबूझ के मतलब गलत व्यवहार करना। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा नहीं जमेगा या मैं उसके साथ सही से आदान प्रदान या मेरा व्यवहार सही हो नहीं सकता, तो दूर से ही हम उनको मतलब मुस्कुरा के ये कर सकते हैं। लेकिन कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। और ये जो भगवत गीता का जो श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिनः। तो एक्चुअल पंडित वही है जो हर किसी को बाहरी मतलब उसके शरीर के ऊपर आधारित है, मतलब अंदर जो जो जीव जो आत्मा और परमात्मा का जो अंश को देख के जो अपना जो व्यवहार करता है, वही सही में पंडित कहलाता है। और जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो केवल और केवल अपने गुरु को या भगवान को ही जो है सम्मान देते हैं। बाकी सब लोगों को जो है वो मतलब एकदम उनका जो व्यवहार है बहुत ही जैसे एक मटेरियलिस्टिक रहता है ना। जो बॉस रहता है वो केवल अपने जो मैनेजर लोगों को वगैरह जो है थोड़ा सा सम्मान देता है। वो फिर वो पीयून वगैरह जो झाड़ू पोछा लगाने वाली, वो क्या करते हैं उन लोगों को, ए इधर आ, मतलब उनका जो बात करने का तरीका वगैरह। तो इस तरह से जो होता है, उस तरह से जो कनिष्ठ जो भक्त होता है उसका वो उस तरह से व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि द डिवोटी शुड रेगुलरली सी he should see in the spirit of renunciation from mode of goodness and see every living entity as spiritual। तो हम एटलीस्ट इसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भले ही साधक है, अभी भी हम शुद्ध भक्त नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट आर्टिफिशियली तो हमको जो है ट्राई करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग जो है प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। पिता श्री गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत आज का आपने जो पूरा ये श्लोक का
इतने सारे एग्जाम्पल्स लेके जो आपने समझाया कि हमारे कई बार ये होता है कि युग धर्म तो जपा है और फिर डेटी वर्शिप का ये लगता है कि ये सेकेंडरी है, बट ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अगर हम जैसे उसको जहाँ लगाएंगे वहीं हमारा मन भी जाएगा। तो जब हम विग्रह अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो हमारा उस समय मन वहां लगता है और फिर वो हमारे मन पे जो है वो अर्चा विग्रह का जो रूप है वो हमारे मन पे आ जाता है। तो फिर जब हम जपा भी करते हैं तो हमारा ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होता है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा बताया। जैसे पहले भी पिछले चैप्टर में जब एक वो आए, कुछ श्लोक आए थे, दर्शन कैसे करना चाहिए भगवान का मंदिर में जाके, तो कैसे पहले चरणों पे ही हमें ध्यान लगाना चाहिए। और तो वो जो विधि बताई थी मंदिर में कैसे दर्शन करना है, वो भी जो है वो डेटी वर्शिप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रभु जी, वो भी डेटी वर्शिप का ही एक अंग हुआ जो हम दर्शन करते हैं। यस 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 माता जी, यस, दर्शन तो करना भी। हाँ, तो वही हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप दीप करते हैं। तो जब ये सब करते हैं तो भगवान के लिए हम करते हैं और वो हमारे लिए भी, हमें भी अच्छा लगता है और हमारी इंद्रियां उससे पोषित होती हैं। तो और हमारा फिर ज्यादा ध्यान लगता है। ये मैंने भी देखा है कि जैसे सवेरे मैंने अपने उससे देखा है कि जब मैं सवेरे जब कर लेती हूँ आरती और वो दीपक जल रहा होता है और सब कुछ, उसके बाद जपा बहुत अच्छा होता है। तो ये आपने बहुत अच्छा ये बताया। और फिर जो राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव और राधा मदन मोहन का जो आपने बताया कि ये तो साक्षात भगवान है और इनके हमको मालूम भी है। अभी जैसे राधा रमन भी जो वृंदावन में है, ये सारे जो हम इनको तो हमें मालूम ही है कि ये स्वयंभू है और भगवान है। और जो स्वयंभू नहीं भी है उनमें भी हम उनका आह्वान करते हैं पूरा एक 2-3 दिन का। जब किसी भी मंदिर में डेटी इंस्टॉलेशन होता है और जब वो पूरा अर्चा विग्रह का स्थापित करते हैं तो उसमें हम उनके आह्वान करते हैं और फिर वो भगवान उसमें मतलब उसमें भगवान आते हैं हमारे लिए। तो और भगवत गीता में भी अभी कल एक मैं सुन रही थी भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का, उसमें 11th चैप्टर चल रहा था। तो उसमें एक 7th श्लोक में ये आता है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अ, तुम मेरे में देखो, ये सब तुम्हें दिखेगा। और फिर उसको देन फिर वो देते हैं, उनको दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। तो वो महाराज जी यही बोल रहे थे कि अर्जुन जैसा जो व्यक्ति था, इतना जो गुडाकेश, जिसको गुडाकेश कह रहे थे, उनकी तो इंद्रियां इतने कंट्रोल में, और हम तो उनके सामने वो मजे से बोलते भी है कि हम किस गाय के गोबर हैं। तो हमारी तो योग्यता ही नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान के दर्शन कर सके। तो हम हमें भगवान मंदिर में ही हमें भगवान के हमें दर्शन मिलते हैं। और ये हमारा भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि इस्कॉन के सारे मंदिरों में जो डेटीज और जो उनका इतना पैराफर्नेलिया है, इतना सुंदर होता है और इतना सब लोग मेहनत करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे यहाँ पे नित्यानंद चतुर्दशी त्रयोदशी हुई थी, तो उसमें भगवान के जो ड्रेस थी, वो बता रहे थे कि 40 दिन माता जी बैठ के उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और वो 40 दिन में वो ड्रेस को तैयार किया था। तो वो इतना सुंदर था। और ये तो नित्यानंद त्रयोदशी का था। और रोज भी हम देखते हैं, रोज इतना ऐश्वर्यपूर्ण उनका श्रृंगार होता है कि बस मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता है वहां पे जाके। तो ये एकदम दिस इज अ फैक्ट। और फिर आपने जो वो रघुनाथ भगवान रघुनाथ की जो आपने ये बताई कि कैसे वो सुनवाई हुई, कोर्ट में सम्मन गया, फिर जज को कितना वो हुआ, मन में इतना वो हो गया कि मैंने क्या कर दिया, और वो वृंदावन चले गए। ये भी बहुत सुंदर आपने जो कहानी सुनाई। और फिर आपने जो बाद में समदर्शिना वाला जो दिया कि हमें जब हमें किसी का कुछ बुरा लगता है तो हमें ये नहीं, उसमें कमी नहीं देखनी है। हमें हमें किसी का कुछ भी व्यवहार बुरा लग रहा है तो एक तो ये कि
हमें हमारे अंदर वो कमी है, इसलिए हमें उसका बुरा लग रहा है, इसलिए हमें दूसरा इंसान पसंद नहीं आ रहा है। और अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है या हम मान लो उससे हमारी नहीं बन रही है, तो हमें फिर भी उसके अंदर भगवान परमात्मा का वो ध्यान रहना चाहिए कि उसके अंदर भी परमात्मा है और परमात्मा सभी जीव से प्रेम करते हैं। तो हमें उससे चाहे दूरी रखें, लेकिन मन में उसके लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, वो हमारे से नहीं बन रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है इंसान। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर था। और फिर आपने जो वैष्णव भजन का भी कि जब हम भजन सुनते और गाते हैं तो उससे भी हमारा ध्यान और जो है और अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें करके करने पे भी पता लगता है कि हाँ, दिस इज ऑल मतलब बिल्कुल फैक्ट है। कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया है और ऐसा है इसमें, इट्स ऑल फैक्ट। करके देखने के बाद भी पता यही लगता है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सारे जो आपने प्रसंग इतने सुंदर सुनाए। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वही ये वैष्णव भजन सारे इतने मतलब प्रभुपाद कहते हैं दिस इज लाइक फिलोसफी मतलब और प्रार्थनाएं। तो हमको पूरा रेडीमेड मिला है, हमको केवल उसका एडवांटेज लेना है। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू प्रभुपाद। वही ऑल माता जी। ग्लोरीज टू प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सुपर क्लास था प्रभु जी, सो मेनी थिंग्स। अभी मुझे जयपुर जाने का मन कर रहा है। सो इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आपने दिया है। एंड विथ योर लेक्चर एक्चुअली मेरे सामने, आई एम सपोज टू गो फॉर वर्क राइट नाउ, बट 3 बुक्स है सामने, भगवद गीता का, भागवतम का, एंड और रामानुजाचार्य का बुक दैट इज रिटन बाय नैमिषारण्य दास, because मुझे immediately I was able to connect something, and वहां जाके I just checked. So first प्रभु जी, 5.18 वो विद्या विनय संपन्ने, so उसके पहले एक और श्लोका normally comes to my mind, which is 15.7 ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. So normally, particularly difficult people say deal करते समय, I remember this shloka and then Vidya Vinaya Sampanne. अभी एक और श्लोका came to my mind, which is भागवतम का कैंटो 1 चैप्टर 18 टेक्स्ट 7 प्रभु जी. सो पर्पॉट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कली युग में, बिकॉज वो डिफिकल्ट पीपल डील करते समय, हाउ डू वी प्रैक्टिकली डील विद देम, राइट? सो 5.7 ठीक है, 15.7 ठीक है, 5.18 ठीक है. सो इस श्लोका ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज पर्पॉट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई जस्ट रीड दो सेंटेंसेस. So by the will of the Lord, a living being does not become a victim of a sinful act until the act is actually performed. In other ages, simply by thinking of performing a sinful act, one used to become the victim of the act. So अभी हम सोच में भी व्यस्त, भगवान इतना merciful है. He's saying even if we have bad thoughts against that person, we have to retaliate. So हमें practically, at least if we don't execute it in action, so we are still protected. So practically that's what I thought. हम ये तो हम कर सकते हैं definitely. Thoughts को we cannot stop, but mind को control करके walking away from the situation, not reacting immediately to that situation. So that I wanted to share, Prabhuji. सेकेंड, ये रामानुजाचार्य का डेटी वर्शिप का इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आपने दिया. एंड मेरा भी इट इज लाइक आई लव टू गो, जैसे विनती माता जी ने भी बताया ना, इतना डेकोरेशंस आर सो ब्यूटीफुल. एंड मुझे एक्चुअली वो शिफ्ट भी था, बिकॉज साउथ में टेम्पल्स आर ऑल बहुत 1000-year old टेम्पल, एंड इतना पुराना दिस थिंग है, वो वाइब भी बहुत डिफरेंट है. सो मुझे थोड़ा
time, it took some time for me to यहाँ का temple appreciate करना, because सब नया नया है ना. अभी I went to Ayodhya also, and Ram Lalla को सब नया नया. But then I realized जो the sculptors है, भगवान उस पे आते हैं, gives them that thing to create such beautiful deities. इतना beautiful है यहाँ माँ श्री श्री राधा दामोदर. So just want to go and sit there, and जैसे आपने बताया वो chanting करते समय when all these other thoughts come, उसको सुपर इम्पोज ऐसा इमेजेस से हम भगवान का सुपर इम्पोज करते हैं, डेफिनेटली इट गोज अवे एट लीस्ट फॉर सम टाइम. प्रभु जी, नाउ आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन मोर. रामानुजाचार्य के इन हिज हिस्ट्री श्रीरंगम में there is a goddess का actually तायार, that's what we say, we say तायार. उसका नाम बीबी नाचियार है. So या तुलक नाचियार. So basically इसका just to associate it with the deity, what happened was एक तो मूलव मूर्ति कहते हैं, एक तो उत्सव मूर्ति कहते हैं. मूलव मूर्ति जनरली वो पत्थर का जो होता है, एंड उत्सव मूर्ति वो स्ट्रीट्स में लेके जाते हैं ना भगवान को, बाहर लेके वो सब फेस्टिवल्स में ऐसा लेके जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये उत्सव विग्रह मूलव विग्रह जिसका नाम रमा प्रिया है, उसका मुस्लिम रीडर्स ने निकाल के श्रीरंगम से निकाल के वो दिल्ली लेके दिल्ली में था. बट रामानुजर के ड्रीम में भगवान ने आया एंड कहा मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, सो दैट बाकी सब लोग भी मुझे देख सकते हैं, सो उस विग्रह को लेके आ जाओ. सो रामानुजर ने उसके शिष्यों के साथ वो दिल्ली आए थे. आई थिंक 2 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली आके. देन उसको पता चला कि ये विग्रह वो मुस्लिम रूलर के पास था. बट सो उस मुस्लिम रूलर ने सब दिखाया, जो कुछ वो चुरा के लेके यहाँ आए थे, उस सब उसमें नहीं था. देन इसको पता चला कि उसके वो प्रिंसेस उसके बेटी के पास थी. सो वो इमीडिएट वो मुस्लिम रूलर भी एग्री किया, तुम आप लेके जा सकते हो. सो रामानुजर ने इमीडिएटली अपने शिष्यों के साथ वो लेके, बिकॉज उसका डर था, बिकॉज ऐसा सुंदर विग्रह को देके वो नहीं उसको वापस चाहिए होगा. सो इसलिए इमीडिएटली तुरंत वो रास्ते पे निकल गए. बट जैसे रामानुजर ने सस्पेक्ट किया, वो प्रिंसेस को इतना अटैचमेंट हो गया इस मूर्ति से, वो भी पीछे पीछे आ रही थी. इट इज लाइक अल्टीमेटली वो भी श्रीरंगम पहुंच गई. डिस्पाइट द फैक्ट वो मुस्लिम थी उस समय, डिस्पाइट ऑल द रेस्ट्रिक्शंस, उसका प्योर भक्ति को देख के उसका रामानुजर ने अलाउ किया वो टेम्पल में भगवान को देखने के लिए. अल्टीमेटली वो भी शी पास्ड अवे इन प्योर डिवोशन. बट वो तायार के सो लाइक गिवन द स्टेटस ऑफ द गॉडेस, वो सेपरेट टेम्पल भी है उसका वर्शिप करने के लिए बाय द नेम ऑफ बीबी नाचियार या तुलक नाचियार. ये टेम्पल मेलकोट में भी, आपने कनकदासा के बारे में भी कहा, वो कर्नाटका में मेलकोट के जगह में भी इसका वर्शिप करते हैं वहाँ लोग. जस्ट वांटेड टू शेयर दिस प्रभु जी. अगेन थैंक यू सो मच फॉर एन एक्सेलेंट क्लास. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Yes, all glories to Prabhupada माता जी. थैंक यू माता जी. ऑल गोज टू प्रभुपादा. आपने ये सारे जो अभी बताए, एक्चुअली दिव्य देशम, मतलब पूरा साउथ इंडिया इज फिल्ड विद दिव्य देशम. सो मेनी, मतलब वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट. इतने सारे भगवान ने हमारे लिए लीला स्थली रखी है. थैंक यू. यस, श्री प्रिया माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. इतना अच्छा क्लास था. आई जस्ट गो बाय व्हाट वाईजी माता जी सेड. इट वाज रियली वंडरफुल. Prabhuji, I just wanted to add a small little point with what Vaiji Mataji said. Since she said the deities are in Melkote and I stay very close to Melkote. I'm in Mysore. So hum log gaye udhar. The small addition to that is when Ramanujacharya went and he asked the Mughal king's daughter to give the deity, she refused because, as Mataji said, she got very much attached to that deity.
but Ramanujacharya wanted the deity. So he just called, he said, come to me, my Lord. He just called him, and the Lord just crawled and came to him. He left the princess and he crawled, and then he just said, come, Varai Chellapillai. Chella means somebody who's very dear to you. How you actually, cuddle a baby. Like that, he said, come, Varai Chellapillai. Then come to me. And then the Lord came to him running, and then Ramanuja hugged him and he brought him here. And when you go to that temple, I wish you're all able to come here and you can see the deity. If the deity is there, and you also have a separate sanctum, I mean, a Sannadhi for Ramanujacharya also. So that's the power of the devotion which Ramanujacharya had. As soon as he called it, he came running to him. And that's how it was. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Yeah. Thank you. Thank you, Mataji. That sentence was so nice. Please type karna. Like a father calling out to a child, the way we call out when that's it's so nice to hear that. Even though language alag hai, but so much devotion. Thank you, Mataji. Yes, Vinti Mataji. Hare Krishna. अब प्रभु जी, हाँ, ये अब सुन के ना मुझे एक ये आया, बैजी माता जी जो कह रही थी ना कि साउथ के मंदिरों का जो गर्भगृह और सारा होता है यहाँ पे, तो शी टुक सम टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू लुक, मतलब इस तरह का। तो आई रिमेम्बर कि हम रामेश्वरम और साउथ के कई मंदिर हम गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा जो एक उसका भी एक अलग ही महत्व है कि वहां पे मंदिरों में अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गर्भगृह में, और वहां पे पूरा वो दीपक से ही वो करते हैं और अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो भी एक उसके अलग उसकी सुंदरता होती है, मतलब उसमें भी जो आपका ध्यान लगता है बहुत ही सुंदर। जैसे मदुरई का जो मंदिर था और जो हम रामेश्वरम भी गए थे, इट्स लॉन्ग बैक, अब तब तो बहुत ही सुंदर था क्योंकि इट वाज आई थिंक 30 इयर्स हो गए उस बात को, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब तो खैर काफी क्राउडेड भी आई हैव हर्ड ऑफ लेट, लेकिन इट वाज, मतलब वो इतना सुंदर, वो भी बहुत सुंदर लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिर्फ दीपकों से इतना अच्छा सजाते हैं, इतना अच्छा वो वहां पे सब कुछ लगता है। यस माता जी। मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से कि मैंने मतलब बहुत सुना है सारे, लेकिन अभी तक मैं हार्डली आई विजिटेड फ्यू धाम, सो प्लीज मेरे लिए प्रे करना। मैं और हमारे जो भी मतलब फैमिली के साथ ये सारे धाम जाने का मुझे मौका मिले, प्लीज प्रे करना, क्योंकि कभी कभी छुट्टी एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई हेवंट खाली आप सारे भक्तों से ही सुना है, सो प्लीज प्रे। और नॉट ओनली फॉर मी, जो जो मतलब धाम नहीं गए इतने सारे, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट हर जगह, तो ये लाइफ टाइम में एटलीस्ट वंस हर जगह पहुंच सकूं। प्लीज, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। उसी के लिए हम लोग साधु संघ का ट्रिप निकालते हैं हर साल। यू जॉइन अस। ओके, तो या वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड प्रभुपाद जी हैज गिवन अ वेरी डिटेल्ड इलेबोरेटेड पर्पट। वो पढ़ेंगे तो भी इट्स वेरी बहुत कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो जैसा ये जो पास टाइम है राधा गोपीनाथ जी वाला, दैट्स रियली, मतलब ऐसा सुनने में हाँ ठीक है, घड़ी पहना दिया और घड़ी चल रहा है, बट टू इमेजिन और टू फील कि ये कोई साधारण जस्ट एक मार्बल का डेट ही नहीं है ये। उसका जो था, उसका जो वॉच था पल्स वॉच, तो पल्स वॉच कैसे काम करता है? अगर किसी व्यक्ति में पल्स है, जैसे हमारे जब हार्ट बीट चलती है तो हमारा डॉक्टर लोग नर्व्स चेक करते हैं रिस्ट पे, तो उस बीट पे वो वॉच चलता है, उसमें कोई बैटरी नहीं होता, कुछ नहीं होता, एंड उसी पे चलता है। अगर वो किसी ने निकाल के रख दिया तो रुक जाता है। और ये जब उनको पहनाया गया तो इट वाज एक्चुअली वर्किंग, और अभी भी चल रहा है वो घड़ी। अभी भी हम लोग देखे राधा गोपीनाथ जी का अगर हम लोग
गूगल करें तो वी कैन सी अ वॉच, एंड वो मेरे ख्याल से वो एक ही डेटी है जो वॉच पहनती है वो। तो ये भगवान का अपने अलग अलग लीलाएं हैं, भगवान का अपना अपना तरीका है भक्तों में ना एक प्रकार का, या साधारण लोगों में जागरूकता लाने का। तो ही शोड कि भाई मैं खाली पत्थर नहीं हूँ, मुझे घड़ी पहना हो तो इट विल वर्क। एंड वो भी मतलब बैटरी वाला नहीं है, बैटरी नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं होता, वो खाली पल्स पे चलती है, एंड इट इज स्टिल वर्किंग। दैट्स एन अमेजिंग पास टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब भी सुनता हूँ। एंड इसमें एक ब्रिटिशर ने जो मतलब दूसरे कल्चर का था, उसको भी मतलब ये बात का एहसास हो गया कि नहीं, ये जो है कोई बस खाली, इट्स नॉट जस्ट स्टैचू, कोई स्टोन नहीं है, ये सब रियली है। तो आगे का जो पार्ट है, हम लोगों ने से आज दो पैराग्राफ देखे, आगे के दो पैराग्राफ कल हम लोग देखेंगे इसको, और विश्वम्बर प्रभु लेने वाले हैं। ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन प्रेजेंटिंग। तो आगे का जो पार्ट है वो हम लोग कल विश्वम्बर प्रभु जी से सुनते हैं हम लोग। प्लीज डू ज्वाइन फॉर दैट एवरीबडी। हरे कृष्णा, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, स्पेशली विनती माता जी, वैजी माता जी। हरे कृष्णा। और सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से कि एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा श्लोक पढ़ के आए, परपट पढ़ के आए। और इसीलिए हम लोग इसको मतलब हो सकता है इतना 15 मिनट नहीं मिले आपको, इसके लिए हम लोग उसको डिवाइड भी करते हैं। भाई खाली 2 परपट है, सॉरी 2 पैराग्राफ है, इतना तो टाइम हम लोगों को रीडिंग के लिए निकालना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रवचन देने वाला है बोलते जा रहा है, हम लोग अपना यहाँ पे दूसरा कुछ काम करें, नहीं, वी हैव टू सिट, वी हैव टू लिसन। और हम लोग जब परपट पढ़ के आएंगे तो वी विल ऑल्सो बी एबल टू उसमें समझ पाएंगे, और जब उसको डिटेल में जो प्रवक्ता है वो जब बताएगा तो प्लीज डू दैट एंड टेक पार्ट इन रीडिंग। प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि हम लोग उनके बुक्स को अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करें, तो प्लीज टेक पार्ट इन टू दैट। और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, जो इसको करेगा ही विल बी टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट। सो थैंक यू सूरत माधव प्रभु। हम लोग रुकते हैं और लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्ण।